So good morning my dear students come friends to the platform Integration by English Dreamers. This is the chapter 2. Previously I have gone through the chapter 1 of this book, which is the book of class 6, and the name of the book is Shower of English. Lastly we have gone through first chapter, which was about a boy Thambi who was a news bringer, and the name of the chapter was Laughter, a Best Medicine. I recommend you, if you have not watched that video yet, please go through the explanation of the chapter, and I bet you like it very much. Fine. So as again told you before, that integration works on the concept of clearing all the concepts and clearing all the words of the each and every line of the chapter. Okay, so I will try my best to make everything clear to you in this chapter as well as I have done it previously. Okay, so let us start with the chapter explanation. Yes, of course I will explain the chapter in English also, in Hindi also, because I know there are many students who cannot understand or who don't get the story explanation in English. Okay, and आपको अगर स्टोरी पता रहेगी अच्छे से तो ही आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे. Understand? So for that reason, yes, definitely I'll be going through the explanation in Hindi. Fine. So there is no need to worry, no need to fear, no need to hesitate. You just have to make friendship with English to speak in English. English is just a language. Okay, it's not about a status, it is just a language. So anyways, let us start with the chapter explanation. Of the bird a nest, the spider a web, man friendship, William Blake. Okay, who said this? A great personality, William Blake, has given this line. इसका मीनिंग क्या होता है? The bird a nest, the spider a web. यानी कि चिड़िया को क्या चाहिए? घोंसला चाहिए. स्पाइडर यानी कि मकड़ी को क्या चाहिए? जाल चाहिए. वेब, और इंसान को क्या चाहिए? फ्रेंडशिप. मैन फ्रेंडशिप. ठीक है. फ्रेंडशिप इज अ स्पेशल गिफ्ट टू ह्यूमंस. इंसानों को जो सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है वो क्या है? ह्यूमंस. एंड इनफैक्ट हम ये नहीं बोल सकते ना कि ह्यूमंस को ही स्पेशल गिफ्ट मिला है. जानवर भी बहुत समझदार होते हैं एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव. ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड दे एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना. तो फ्रेंडशिप इज अ स्पेशल गिफ्ट, आई कैन से, टू ऑल द क्रीचर्स, to all the living creatures who can feel on this earth, right? But here in chapter it is given that friendship जो है वो एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है इंसानों के लिए. हमारे लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम जानवरों से भी उठकर हम फ्रेंडशिप को फील कर सकते हैं ना. जानवरों से भी कहीं ज़्यादा सेंसेशन, सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है. अंडरस्टैंड? This is the only relationship that we can make on our own. तो कहा गया है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम अपने चॉइस से, अपने मन से, अपनी इच्छा से हम बना सकते हैं. ठीक है. बाकी के सारे जो रिलेशंस है ना वो हमारे डिफाइन किए हुए हैं ना. ये हमारे चाचा जी है, ये हमारे मामा जी है. She is my mother, he is my father, he is my sibling, he is my cousin, she is my nephew, he is my nephew, she is my niece, है ना. सारे रिलेशंस हमको डिफाइन किए गए हैं, है ना. She is my teacher, he is my sir. ओके, लेकिन फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, आप जिसको खुद से चूज कर सकते हैं, आप फ्रेंडशिप अपनी खुद से बना सकते हैं. अंडरस्टैंड? Friendship is not something that you learn. It is an experience, a treasure and an asset of life. बहुत important बात है यहाँ पर. ठीक है, देखो फ्रेंडशिप जो है ना, हमको क्या लगता है? हाँ भाई चलो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. ओके, या फिर ज़्यादातर लोग फ्रेंडशिप क्यों करते हैं? हाँ, मुझे उस इंसान से ये काम पड़ सकता है तो इसलिए मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए, राइट. बट देखो यहाँ पर क्या बताया गया है? फ्रेंडशिप इज़ नॉट समथिंग दैट यू लर्न, इट इज़ एन एक्सपीरियंस. देखो फ्रेंडशिप ना आपको कोई सिखा नहीं सकता.
है ना। फ्रेंडशिप ना सीखी जा सकती है ना सिखाई जा सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि आप उसको फील करते हैं। आप उस जर्नी से, एक अच्छी दोस्ती और एक बुरी दोस्ती की जर्नी से आप गुजरते हैं, और वहाँ से आपके माइंड में जो फ्रेंडशिप वर्ड है ना उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, उसका जो एक्चुअल जो एसेंस है वो आपको समझ में आता है। गॉट इट। फ्रेंडशिप इज अ ट्रेजर। ट्रेजर यानी कि बहुत ही अनोखा, या फिर बोलना चाहिए बहुत ही ज़्यादा कीमती तोहफा है ना। ट्रेजर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती चीज़, ठीक है। एंड एन एसेट ऑफ लाइफ। एसेट ऑफ लाइफ माने अगर किसी इंसान के जीवन में कोई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तो वो है उसके फ्रेंड्स और उसकी फ्रेंडशिप। गॉट इट। मेक फ्रेंड्स, बी अ ट्रू फ्रेंड, वैल्यू योर फ्रेंड्स। क्या आपको यहाँ पर एडवाइस दी गई है? फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है। एक सच्चे दोस्त बनकर दिखाइए या एक सच्चे दोस्त बनिए, और अपने सच्चे दोस्त की या अपने दोस्तों की वैल्यू कीजिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंडशिप के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, ठीक। आजकल तो बहुत सारे और भी नए नए डेफिनेशंस आ गए फ्रेंडशिप के। बट देखो एक अच्छी फ्रेंडशिप ये होती है जहाँ पर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है। कोई भी कंपटीशन की, कोई भी जेलस की भावना ना हो। आप हमेशा एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना। और उनके दुख में दुख हो, उनके खुशी में खुश हो। एक अच्छी फ्रेंडशिप यही होती है, ठीक है। बाकी की सारी बातें जो है वो क्या है, बेकार की, ठीक है। अब यहाँ पर हमको चैप्टर देखना है। यहाँ पर फेयर प्ले पढ़ते हैं, सेक्शन 1। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग विच यू थॉट वाज रॉन्ग? बहुत बार ऐसा हुआ होगा, है ना। यहाँ पर पूछने वाली कोई बात नहीं है। पूछा जा रहा है कि क्या आपका बेस्ट फ्रेंड कभी ऐसा कुछ काम किया है जो कि गलत हो, जिसको आप ऐसा सोचते हो कि उसने गलत किया। व्हाट डिड यू डू देन? उसके बाद आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और करेक्ट योर फ्रेंड? तो आप क्या चुप रहे, या फिर आपने अपने दोस्त को करेक्ट किया, यानी कि आपने अपने दोस्त को सुधारने की कोशिश की, उसको आपने रियलाइज कराने की कोशिश की कि आप गलत हो यहाँ पर। यूज Cordova Smart Class software on the smart board in class to watch and read this story about two friends. आपको ये वाली स्मार्ट क्लास यूज करनी है। एक्चुअली दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर योर टीचर, ओके। एंड वॉच रियल स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, ठीक है। दो फ्रेंड्स के बारे में आपको रियल स्टोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी इन Cordova स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु डिसाइडेड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप, एनिमिटी और अ सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एक्चुअली में किस बारे में है? ये इस बारे में है कि दो दोस्त हैं और हु डिसाइड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। जो ये डिसाइड करते हैं, एक सिचुएशन आती है जहाँ पर उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुश्मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सेंस ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय, है ना, सही फैसला लेना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। गॉट इट। Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. Let us start with the chapter reading, and I'll read the lines and explain you the meanings as well. Fine? Along with the reading of the chapter. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. दोनों बहुत अच्छे friends थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. देखो जो दो दोस्त थे ना, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, दोनों क्या थे, उनकी जो दोस्ती थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि दोनों ना बिल्कुल एकदम एक दूसरे की फैमिली का भी बड़ा ध्यान देते थे। जैसे एक दोस्त अगर कहीं बाहर चला गया गांव से, तो जो दूसरा दोस्त है ना वो उसकी फैमिली का टेक केयर करता था। दे लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। ये जो लुक्ड आफ्टर है ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। मैंने पहले भी बताया था लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। अगेन आई मस्ट रिपीट, फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो
ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, टू वर्ड्स और टू मोर देन टू और थ्री वर्ड्स, जहाँ पर हम प्रपोजिशन एंड वर्ब्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, जब प्रपोजिशन एंड वर्ब्स मिलते हैं तो शब्द का जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसलिए लुक्ड आफ्टर का मतलब पहले देखा था या आगे चलकर देखेगा ऐसा नहीं होता है। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है कि ख्याल रखा गया था। ठीक है, उन्होंने वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे जब भी कोई एक दोस्त बाहर जाता था। ठीक है, तो अब दूसरे की फैमिली का बिल्कुल केयर करते थे, और दोनों बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे विलेज में। लोग दोनों की ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. फिर से देखो look after आया है ना। तो जुम्मन की एक बूढ़ी सी आंटी है जिनके पास ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। हु हैड सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो हु है ना उसका मतलब है जो। ठीक है, ये प्रपोजिशन का एक पार्ट है। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर हु का मीनिंग कौन नहीं, जो है। ठीक है, जुम्मन की एक ओल्ड आंटी है जिनके पास या जो कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उन्होंने उसको ट्रांसफ़र किया है, किसको, जुम्मन को, और एक समझौता किया है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक समझौता किया है कि वो उसके साथ में रहेगी, जुम्मन के साथ में। क्यों भाई, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है तो अब आंटी का ध्यान कौन रखेगा? जिसने प्रॉपर्टी ली है वही तो ध्यान रखेगा, है ना। तो जुम्मन ने आंटी से की प्रॉपर्टी ली और ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जुम्मन जो है वो आंटी को ध्यान देगा और आंटी का ख्याल रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स मतलब कि थोड़े से सालों के बाद। ठीक है, ये जो है ये क्या टॉपिक है हमारे, जो हम नाउन्स के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जिनके लिए हम एक्सप्रेसिव वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि एक चुटकी नमक। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ शुगर। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ शुगर यानी कि सिर्फ एक दाना शक्कर का, है ना, क्रिस्टल ऑफ शुगर। तो वैसे ही थोड़े से समय के लिए या कुछ सालों के लिए हम बोलते हैं उसको कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट ये सारा अरेंजमेंट जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो सारी चीज़ें सेटअप की गई थी कि आंटी की प्रॉपर्टी जुम्मन रखेगा और आंटी का ध्यान देगा बदले में, ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़े समय के लिए तो काम की। देन द सिचुएशन चेंज, और उसके बाद क्या हो गया कि सिचुएशन बदल गई। जैसे इंसान का मन बदल जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन बदल गई। क्या बदली भाई? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो अपने पुराने रिलेटिव से ना टायर्ड हो गए, यानी कि थक गए। ठीक है, यानी कि इस आंटी से, ठीक है, पुराने रिलेटिव मतलब कोई और नहीं, इन आंटी से थक गए। ठीक है, जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बदला बदला सा व्यवहार करना। ठीक है, तो जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, दोनों जन जो है ना आंटी के लिए बिल्कुल बदल गए। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। ठीक है, ग्रज्ड का मतलब क्या होता है ना कि मतलब एकदम उनको उनसे बुरा व्यवहार करना, उनके साथ में बुरे तरीके से बात करना। ठीक है, ग्रज का मतलब होता है ना कि खुन्नस रखे रहना उस तरीके का। ठीक है, कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन और मैं हमेशा उसके साथ में गलत व्यवहार ही कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? तो दोनों क्या कर रहे हैं ना, वो थोड़े से फूड के लिए भी आंटी को ना बिल्कुल एकदम कोसा करते थे। ठीक है, दैट ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। ठीक है, थोड़ा सा जो खाना उनको चाहिए रहता था ना उसके लिए भी उन लोग आंटी के साथ में बिल्कुल मिसबिहेव करते थे। शी swallowed these insults along with her food for a few months.
थोड़े से कुछ महीनों के लिए, है ना, उन्होंने क्या किया, इस बेइज्जती को तो सह ली, है ना। स्वॉलोड का मतलब होता है कि गटक लेना, किसको, इंसल्ट को। उन थोड़े से खाने के साथ में आंटी ने उस इंसल्ट को भी सह ली, पर कब तक के लिए, सिर्फ थोड़े से समय के लिए, ठीक है। अ फ्यू मंथ्स का मतलब होता है कुछ ही महीनों के लिए, ठीक है। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, पेशेंस की भी तो एक लिमिट होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में मैंने बताया था फ्यू, अ फ्यू, ठीक है। ये उसी वही टॉपिक है, अंडरस्टैंड। फ्यू का मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा, और अ फ्यू का मतलब क्या है कि जो मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस बनाता है ना। अ फ्यू मंथ्स यानी कि एक पॉजिटिव सेंस में बता रहा है कि थोड़े से मंथ के लिए, जो कि पर्याप्त है। पर्याप्त, यहाँ पर तो पर्याप्त वर्ड का कोई मतलब है नहीं, आप बस ये समझिए कि थोड़े से मंथ के लिए ना, जो है आंटी ने इंसल्ट को तो सह लिया, लेकिन पेशेंस की भी तो एक लिमिट होती है। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, इट्स लिमिट्स, ठीक है। हम कितने समय तक के अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो अ फ्यू मंथ है ना, ये क्वांटिफायर में भी आता है कि एक क्वांटिटी बताता है किसी भी चीज़ की। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उसकी क्वांटिटी बताता है कि है थोड़ा है तो कितना है, ज़्यादा है तो कितना है। गॉट इट। अभी यहाँ पर देखो, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। अब वो जुम्मन से बात करती है एक दिन, और बोलती है कि माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। तो बोलती है कि बेटे देखो, मैं समझ चुकी हूँ। ऑब्वियस मतलब कि बिल्कुल नेचुरल बात है ना, ये बिल्कुल नेचुरल बात है, और मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं तो अब इस घर में, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली का मतलब होता है नेचुरली या फिर स्वाभाविक तौर से, ठीक है। जैसे कि अब आप स्कूल के लिए निकल रहे हो और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, स्कूल। ऑब्वियसली यानी कि ये बिल्कुल जानने समझने, ये पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आता है कि अगर आप यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर निकले तो आप स्कूल ही जाएंगे, ठीक है। तो उतनी नेचुरल, उतनी स्वाभाविक बात, उस बात के लिए हम बोलते हैं ऑब्वियस, ठीक है। तो वो बोलती है आंटी की ऑब्वियस है, मैं समझ रही हूँ कि अब मुझे, मेरी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करिए, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। क्या बोल रही हैं आंटी जी, एक काम करते हैं, तुम मेरे अलाउंसेस मुझे दे दो। अलाउंसेस मतलब कि क्या, मेरा जो भी खर्चा पानी है ना, वो मुझे आप दे दो, ताकि मैं अपना एक सेपरेट किचन लगा सकूं, और मैं अपने लिए खाना वाना खुद अपना बना लूँगी, मैं अपना केयर खुद कर लूँगी। अब भाई आंटी क्यों अलाउंस मांग रही है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी पूरी उसको दे रखी है ना, कि वो जो जुम्मन है वो आंटी का ध्यान रखेगा। लेकिन जब वो नहीं रख रहा है तो आंटी को क्या करना पड़ेगा, उनको वापस से अपना दिया हुआ जो एसेट है, जो भी उनकी दी हुई प्रॉपर्टी है, वो उनको वापस लेंगे, तभी तो फिर वो अपना सेटअप करेंगी ना। तो इसलिए वो बोल रही हैं कि आप मुझे कुछ पैसे देते जाओ मंथली अलाउंस के तौर पे, और मैं अपना जो किचन है वो खुद सेट कर देती हूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेट जुम्मन शेमलेसली। बिल्कुल बेशर्मी के साथ में जुम्मन क्या बोलता है, देखो आंटी, जो मेरी वाइफ है ना, वो बहुत अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाते हैं, और आप ना थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। पेशेंट का मतलब कि बीमार इंसान नहीं, पेशेंट का मतलब यहाँ पर है धैर्य रखना या फिर सब्र रखना, ठीक है। बी पेशेंट, जुम्मन बोलता है शेमलेसली। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब क्या हो रहा है कि आंटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उसकी इस बात को सुनकर, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो अपना केस है ना, वो पंचायत के पास लेकर जाएंगी। कहाँ, गांव के पंचायत में, ग्राम पंचायत में लेकर वो जाएंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. अब देखो, ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल एकदम जाके आप किसी के ऊपर केस ठोक दिए। गांव में भी है ना, ग्राम पंचायत में भी आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर स्टेप होता है, ठीक है। कुछ दिनों तक आंटी ने क्या किया कि सबसे उन्होंने बात की, गांव वालों से,
उन्होंने अपने केस को समझाया और लोगों से सपोर्ट मांगा कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है और मैंने अपनी प्रॉपर्टी तो दे दी थी और उसके बदले में जुम्मन ने मुझे बोला था कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, लेकिन अब तो उन लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और मैं अपना जो अलग किचन सेटअप करना चाहती हूँ, अलग होना चाहती हूँ, मुझे अलाउंसेस मैं उससे मांग रही हूँ जुम्मन से, बट वो देने के लिए ही रेडी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। गॉट इट। तो सबसे वो बात करती है, लोगों से सलाह लेती है, फिर लोग उनको कुछ कुछ बात समझाते हैं। उसके बाद फिर वो some sympathized with her others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. अब देखो जैसे जैसे लोग अलग अलग लोग से हम मिलते हैं ना, तो एक ही बातों के ऊपर अलग अलग लोगों का अलग अलग एडवाइस होता है ना। कोई एक ही बात के ऊपर, जैसे आपको कोई परेशानी है, आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, तो वो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग सलाह देते हैं। आंटी के साथ में भी वैसे ही हुआ। सम सिंपैथाइज्ड का मतलब होता है उनके ऊपर किसी ने दया दिखाई, है ना। सिंपैथाइज मतलब दया दिखाना। तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर दया दिखाई, कुछ उनके ऊपर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? अरे देखो इतनी बेवकूफ़ है कि अपनी प्रॉपर्टी दे दी और अब परेशान हो रही है, वापस अपनी सारी चीज़ों को लेने के लिए या खाने खाने के लिए भी मोहताज हो रही है। ठीक है। और कुछ क्या करे, कुछ ने उनको एडवाइस भी किया, यानी कि उनको सलाह दी कि एक काम करो भाई, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, प्रॉपर्टी तो आपके हाथ से निकल गई है, तो अब आपको कैसे भी मतलब खून का घूंट पीकर अपनी जो नेफ्यू है और उनकी जो वाइफ है उनके साथ में तो रहना पड़ेगा। नेफ्यू यानी कि भतीजा। ठीक है। तो जुम्मन जो एक्चुअली था वो आंटी का भतीजा था। ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। लास्ट में आंटी किसके पास आती? अलगू के पास में। क्यों? अलगू जो है वो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है ना, आती है और उनसे बात करती है। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब अलगू क्या बोल रहा है? आंटी आपको पता है ना, चाची आपको पता है ना कि मैं कौन हूँ? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अलगू सेड। बट इट इज But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. क्या बोल रही हैं कि अलगू बोलता है कि आंटी आपको पता तो है ना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। आंटी क्या बोलती है कि पर तुम एक बात बताओ ना मेरे बेटे कि क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप सही बात पे चुप रहो? ठीक है। और कुछ भी ना बोलो वहां पर भी जहां पर आपको बोलना ज़रूरी है, या यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर यानी कि जहां आपको सही लगता है, क्या वहां पर भी आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। प्लीडेड का मतलब होता है कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, उसको रिक्वेस्ट करते हुए समझा रही है, बोल रही है कि क्या जो सही बात है उसके लिए भी तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। क्या बोल रही हैं आंटी जी अलगू को? कि पंचायत आओ और सच बात बोलो। ठीक है। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू कुछ बोल तो नहीं पाया है ना, क्यों बोल पाएगा भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो, जिसके खिलाफ वो बात करने के लिए आंटी उनको बोल रही है। तो वो उसने कुछ रिप्लाई तो नहीं किया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके जो वर्ड्स है ना, वो उसके आंटी के जो वर्ड्स है वो उसके कान में गूंजते रहे। ठीक है। देखो जब आप हम अच्छे इंसान होते हैं ना, तो हमको पता चलता है ना कि क्या बुरा हो रहा है और क्या सही हो रहा है। जब हम बुरे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता, हम गलत कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है, वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर। लेकिन हाँ, जब हम एक अच्छे इंसान होते हैं ना, हमको सारी चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ सही चल रहा है, कहाँ गलत चल रहा है। अंडरस्टैंड। अलगू भी एक अच्छा इंसान था ना, उस इसलिए वजह से क्या हुआ कि आंटी की जो बातें ना उसके दिमाग में घूम रही थी। ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी एडवांस्ड इंग्लिश की बात बताती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर बोले ना, हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, यानी कि आंटी की जो बात है ना, आंटी की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में, वो उसके कान में गूंज रही थी। इसको बोलते हैं कि क्या, वर्ड्स कीप रिंगिंग इन ईयर्स। ठीक है। उसी तरीके से अगर जब हमारे दिमाग में कोई बात घूमती रहती है ना, तो हम बोलते हैं स्टक इन द हेड। क्या बोलते हैं? स्टक इन द हेड। जैसे कि उसकी बात ना मेरे दिमाग में घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हिज वर्ड्स स्टक इन द हेड, या फिर हिज वर्ड्स स्टक माई हेड।
यानी कि उसकी बातें जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है। ठीक है, तो बात गूंज रही है के लिए रिंगिंग इन द ईयर्स, एंड दिमाग में घूम रही है के लिए स्टक इन द हेड। ठीक है, विल अलगू स्पीक द ट्रूथ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल अलगू स्पीक द ट्रूथ। देखो यहाँ पर हम ना यहीं से ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अलगू ट्रूथ कब बोला होगा, अगर वो अच्छा इंसान है और उसके लिए जो जस्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस यानी कि न्याय, यानी कि सही फैसला सुनाना अगर उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सच बोला होगा। और अगर वो एक चापलूस दोस्त होगा, है ना, जो दोस्त की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता है, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो अपने फ्रेंड का ही साथ देगा। ठीक है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। अब उसी दिन जिस दिन आंटी ने बात करके आई थी ना अलगू चौधरी से, उसी दिन पंचायत लगती है शाम को। कहाँ पर? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। तो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, और आपने बहुत बार पिक्चर्स या पुराने सीरियल्स में भी देखा होगा कि पंचायत जो है गांव में इसी तरीके से लगती थी। ठीक है, सारे लोग जो बैनियन ट्री के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। let my aunt nominated the head punch. I will abide by her decision. ठीक है, अब ये जो था जुम्मन था ना, बड़ा मतलब उसको देखो अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है ना कि उसने वो गलती की है करके। खड़े होता है पंचायत में और क्या बोलता है कि जो पंच की आवाज़ है ना वो भगवान की या वो ईश्वर की आवाज़ है। ठीक है, जो ये राइटर है ना इस चैप्टर के, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड नॉवलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। ठीक है, उनकी एक जो सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन स्टोरी है ना वो पंच परमेश्वर की थी। ठीक है, पंच परमेश्वर, उसी से या उसी की तरीके उसी तरह ये स्टोरी है जहाँ पर ये बता रहा है कि पंच जो है ना, पंच यानी कि जो 5 हेड्स होते हैं विलेज के, जब भी कोई बात होती है या जब पंचायत बैठती है तो यही 5 लोग मिलकर जो है ना वो डिसीजन लेते हैं, और उनकी बातों को वॉइस ऑफ द गॉड माना जाता है। यानी कि अगर पंच कुछ बोल रहे हैं तो वो इतने समझदार है, उन्होंने इतना केस को स्टडी किया है कि वो जो बोलेंगे ना वो ईश्वर की वाणी होगी, यानी कि वो भगवान की आवाज़ होगी। और हम क्या बोलते हैं कि भगवान कभी गलत हो सकते हैं? नहीं, भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे साथ में जो भी हो रहा है या चल रहा है वो उनकी सोच समझ से चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर माना जाता है। पहले ऐसे ही बोला करते थे ना कि पंच की जो आवाज़ है ना वो ईश्वर की आवाज़ है। ठीक है, लेट माई आंट, चलो मेरी आंटी को ही पंच को नॉमिनेट करने देते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होता था ना, जब पुराने ज़माने में जब पंचायत बैठती थी तो वहाँ पर लोग पंच को नॉमिनेट करते थे, और वो जो पंच रहता था ना वो क्या करता था कि वो फैसला सुनाता था, दोनों पक्ष की बातें सुनकर वो फैसला सुनाता था। ठीक है, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं आंटी के डिसीजन से का की पूरी कद्र करूँगा, और उनके डिसीजन के यानी पंच के जो डिसीजन रहेगा उसको मैं बिल्कुल मानूंगा। ठीक है, उसको मानने के लिए मैं बाध्य रहूँगा, मैं बंधा हुआ रहूँगा कि मैं पंचायत का जो भी फैसला होगा उसको फॉलो करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। व्हाट डू यू से अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब आंटी क्या बोलती है कि हाँ भाई, पंच जो है ना वो ना तो दोस्त देखता है ना तो वो दुश्मन देखता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, वो सिर्फ यही देखता है कि फैसला सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आंटी बोलती है, ऐसा बोलते हुए क्या करती है, अलगू चौधरी को बोलती है कि क्या कहते हो अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। देखो यहाँ पर ना, जब आंटी, कहने का मतलब क्या, आंटी ने किसको नॉमिनेट किया है पंच के लिए? अलगू को, ऐसे बोलते हुए उन्होंने अलगू को नॉमिनेट किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन। ठीक है, हाइडिंग इज ओवर जॉय, दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन क्या बोल रहा है, ठीक है ठीक है। अब क्या जुम्मन जो है ना वो ओवर जॉय हो गया ना, वो समझ रहा है कि
अरे यार ये तो मेरा दोस्त ही है, ये तो मेरे यानी कि मेरे ही फेवर में फैसला लेगा, मुझे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये तो मेरा लक हो गया जो आंटी ने अलगू को पंच बना दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ये वर्ड है पीस ऑफ लक, ये भी एक एक्सप्रेसिव वर्ड है, पीस है ना, एक छोटे से क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का। तो जब हम छोटी से छोटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, या छोटी से छोटे नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लगाते हैं ये सारे एक्सप्रेसिव वर्ड्स, जैसे कि पीस ऑफ लक, है ना। लक जो है क्या, वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, 1 लाख 2 लाख हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलते हैं, पीस ऑफ लक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक छोटी सी सलाह। ठीक, हम ऐसे नहीं बोलते ना मेरे पास एक सलाह है, 2 सलाह है, हम बोलते हैं मेरे पास छोटी सी, मतलब मेरे पास एक, आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस, आई हैव 2 pieces ऑफ एडवाइस, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से चलती है। ठीक है, बातें जहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल होता है वहाँ पर। ठीक है, तो अब वो क्या सोच रहा है कि अरे यार ये तो पूरा मेरा लक हो गया कि आंटी ने चुना भी है, तो किसको चुना, अलगू चौधरी को। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, जुम्मन सेड अलगू। अब अलगू क्या बोल रहा है कि चाची आपको पता है ना कि जुम्मन और मैं जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई नो, I know that, replied the aunt. But I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. क्या बोल रही है आंटी कि यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं जानती हूँ कि तुम जो हो वो मेरे भतीजे के दोस्त हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपना ज़मीर को नहीं मारोगे, जो अपने ज़मीर को नहीं मारोगे, जो अपने ज़मीर को नहीं मारोगे मतलब क्या है, हु विल नॉट किल हिज कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि आप ना अपने फ्रेंडशिप के नाम से ना अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके और आप गलत फैसला नहीं लोगे। कॉन्शियंस का मतलब होता है बिल्कुल अपने होश और हवास में रहकर सही फैसला लेने की जो एबिलिटी होती है ना, जहाँ पर आप कहीं पर भी तराजू का भार ज़्यादा या कम नहीं करेंगे अपने फेवर के हिसाब से, जो सच बात है आप उसी का सामना आप उसी का ही साथ देंगे और आप उसी के ही फेवर में अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, कॉन्शियंस का मतलब होता है आपकी सही गलत की समझ। ठीक है, तो आंटी बोल रही है कि तुम एक छोटी सी फ्रेंडशिप के लिए ना कम से कम अपनी सही गलत की जो शक्ति है उसको ख़त्म नहीं कर दोगे, है ना। और तो और भाई, पंच के दिलों में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और आंटी फिर उसको और अपनी बातों से दबा देती है ना, किसको, अलगू चौधरी को। क्या बोलती है कि देखो भाई, पंच के दिल में तो भगवान बसते हैं और पंच की आवाज़ जो होती है ना वो ईश्वर की आवाज़ होती है। ठीक है, और ऐसा बोलते हुए आंटी क्या करती है, अपना पूरा केस उसके फ्रेंड को समझाती है, किसको, अलगू को। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस। जुम्मन क्या बोल रहा है, सॉरी अलगू क्या बोल रहा है कि जुम्मन देखो भाई, तुम और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, बहुत पुराने दोस्त हैं ही, लेकिन जो तुम्हारी आंटी जी है ना वो भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितने की प्यारे तुम हो। क्यों भाई, क्योंकि वो मेरे दोस्त की या तुम्हारी आंटी है ना, तो तुम्हारी तो सारी चीज़ों को मैं लव एंड रिस्पेक्ट करूँगा ही। ठीक है, और अभी तो मैं पंच हूँ, अभी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, है ना, अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ, पंच की जगह में। तुम और तुम्हारी आंटी जो है ना अभी के लिए मेरे जो नज़र में है बराबर है। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी गलत डिसीजन नहीं लूँगा जहाँ से झूठ की जीत हो जाए और सच की हार हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब वो पूछ रहा है अलगू कि तुमको क्या अपने बचाव में कुछ कहना है, डिफेंस मतलब कि बचाव। ठीक है, तो क्या तुमको व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, यानी तुम्हें अपने डिफेंस में क्या बोलना है। 3 years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. ठीक है, देखो यहाँ पर कपल ऑफ क्वारल भी जो है ना वो छोटे छोटे झगड़े के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेसिव वर्ड है जो छोटे से झगड़े को एक्सप्रेस करता है। हम एक झगड़ा या 2 झगड़ा नहीं बोलते हैं, अ कपल ऑफ क्वारल बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे मोटे झगड़े। ठीक है,
तीन साल हो गया बोलता है भाई, 3 साल हो गया है। और मेरी आंटी जो है ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी और मैंने उसको सपोर्ट किया था ना, मैंने उनको सपोर्ट किया था कि जब तक कि वो ज़िंदा रहेगी मैं ही आपका केयर करूँगा। लेकिन और मैंने सारी चीज़ें किया भी है ना, जितना मुझसे हो सकता था। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने सारी चीज़ें किया है, ठीक है। मैं जितना कर सकता था उससे मैं वो सारी चीज़ें मैंने की है। आप भी इस फ्रेज़ को ना डेली यूज़ में बोल सकते हैं, जहाँ पर आप बोलना चाहते हैं ना कि भाई देखो मुझे जितना करना था ना मैंने कर लिया, अब तुम देख लो समझ लो, ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ पर आप बोल सकते हो आई हैव डन ऑल आई कुड, ठीक है। तो यानी कि मैंने जितना करना था वो मैंने कर दिया। फाइन। और क्या बोल रहे हैं कि अब भाई देखो मेरी आंटी के बीच में और मेरी मम्मी के बीच में ना छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और मैं उसको नहीं रोक सकता, है ना। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी। और अब क्या हो रहा है कि मेरी वाइफ और आंटी के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ठीक। तो यस लेकिन ना मैं उसको रोक नहीं सकता। और अभी जो है ना आंटी क्या कर रही है, इसी ये छोटी सी बात की वजह से मंथली अलाउंस मुझे क्लेम कर रही है, यानी कि मैं उनको पूरा महीने का खर्चा दूं, ठीक है, फ्रॉम मी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और वो क्या बोल रहा है कि भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आंटी को खर्चा दूं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। अब देखो जुम्मन भी क्या एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो कहता है अरे मेरा दोस्त है, मेरे ही फेवर में जो है बातें करेगा, राइट। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स। अब क्या होता है जब हम किसी की दो पक्ष की बात सुनते हैं ना, उसके बाद हमको क्रॉस एग्जामिन भी करना पड़ता है कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। और क्रॉस एग्जामिनेशन किस बात से होता है कि हम जो आपस में एक दूसरे से जो हम बातें मतलब या कोई भी दुर्घटना जो हुई है उस बारे में कौन कितना जानता है, उन सारी बातों का हम पता लगाकर एक फाइनल कंक्लूजन में आते हैं कि हाँ भाई देखो ये बात सही है और ये बात गलत है। तो वैसे ही हुआ, जुम्मन ने क्या किया, क्रॉस एग्जामिन किया, यानी अलग अलग लोगों से बातें करके क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, किसने किसको क्या बोला था, ये सारी बातों को समझता है। उसके बाद फिर अलगू अनाउंस करता है कि वी हैव गॉन we have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the properties goes back to her. जुम्मन क्या सॉरी अलगू क्या बोलता है कि देखो भाई हमने सारे जो मैटर है उसको हमने क्रॉस एग्जामिन किया है और इस मैटर पे हमने बहुत केयरफुली हमने इसको गो थ्रू किया है, यानी कि हमने इस मैटर को स्टडी किया है। और हमारे ओपिनियन में, यानी कि मेरे ख्याल से, जब हमको बोलना रहता है ना मेरे ख्याल से या मेरे ख्याल में, तो हम बोलते हैं इन आवर ओपिनियन है इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो हमारे ख्याल से जुम्मन जो है ना उसको तो आंटी को मंथली अलाउंस पे करना चाहिए, और या तो फिर आंटी की प्रॉपर्टी तुम एक काम करो वापस दे दो अगर आप उनको लव रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। Got it? Now the two friends were seldom seen together. अब क्या हो रहा है कि ये जो दो दोस्त है ना वो कभी कभार ही एक साथ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जुम्मन है ना उसको तो दुश्मनी हो गई ना उसके बेस्ट फ्रेंड से। उसने जुम्मन ने सोचा था कि मेरा दोस्त है मेरे फेवर में जो है फैसला सुनाएगा, लेकिन वहाँ तो उल्टा हो गया है ना, जुम्मन ने सॉरी अलगू ने सही का साथ दे दिया और जुम्मन को इतना सारा उसको क्या कहना चाहिए कि उसको इतना सारा अलाउंस उनको आंटी को पे करना पड़ गया, ठीक है, हर महीने। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी। सेल्डम इज एन एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना। कितने बार हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, कोई भी चीज़ क्या कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। सेल्डम, सेल्डम का जो ऑपोजिट होता है वो होता है ऑफन, यानी कि अक्सर होता रहता है, ठीक है। वी कैन सी अलगू एंड जुम्मन टुगेदर ऑफन टुगेदर, यानी कि हम उनको हमेशा देखते ही रहते हैं। सेल्डम का मतलब हो गया कि बहुत ही कम, नहीं के बराबर वो दिख रहे हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और क्या हुआ था, उनकी जो दोस्ती है ना वो तो टूट गई थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, ठीक है। क्या होता है, बदला। तो
दोनों के बीच की दोस्ती टूट गई है, ठीक है, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो क्या हो गई है, टूट गई है। और इनफैक्ट अब जो जुम्मन है ना, वो अलगू से दुश्मनी कर ली है और वो चाहता है कि बस मैं मौके की तलाश में हूँ और मैं ना अब तो इससे बदला लेकर ही रहूँगा, ठीक है। डेज पास एंड इल वुड luck as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. टाइट स्पॉट का मतलब होता है ना कि एक ऐसी मतलब बोलना चाहिए कि अब ना जो पूरी लाइमलाइट है केस की वो किसके ऊपर है, अलगू चौधरी के ऊपर है। टाइट स्पॉट यानी कि एक मतलब जटिल समस्या में या जटिल जटिल जगह में वो फंस चुका है। दिन पास होते हैं ना, डेज पास यानी कि दिन गुजरते हैं और अब बुरा लक किसके पास आता है, अलगू चौधरी का बुरा लक हो गया और हो क्या रहा है, वो एक बहुत बुरी जगह में फंस गया है, ठीक है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब क्या हुआ कि इसके जो अलगू का जो एक जो पेयर ऑफ बुलक था ना, फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है, यानी कि जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी को बोलते हैं पेयर और एक जोड़ी में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो उसकी जो जोड़ी थे ना बैल की, वो उसमें से एक मर जाता है और वो जो दूसरा है ना उसको समझू साहू को बेच देता है उसके कार ड्राइवर के लिए, जो कि वो विलेज में पूरे विलेज में चलाता है, यहाँ वहाँ उस बुलक को यूज़ करके वो कार चलाता है और विलेज के लोगों को अपनी ड्राइविंग सर्विसेज देता है। The understanding was that Sahu would pay the pace of the price of the bullock in months time. कंडीशन क्या रखते हैं कि जो साहू है ना वो क्या प्राइस उसका जो भैंस का या बैल का जो भी है, बैल का जो प्राइस है ना वो 1 महीने के अंदर देगा, ठीक है। बुलक इन अ मंथ्स टाइम यानी कि 1 महीने के समय के अंदर वो उस बुलक को दे देगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर इट्स सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। अब ऐसा हुआ, इट्स सो हैपेंड मतलब कि अब वो ऐसा हुआ कि जो बुलक है ना, जो साहू ने लिया था किससे, अलगू से, वो 1 महीने के अंदर ही मर जाता है। विद इन इज अ प्रपोजिशन और विद इन का मतलब होता है अंदर ही, तो 1 महीने के अंदर ही जो बैल है वो मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर बुलक्स डेथ, सेवरल मंथ्स यानी कि कुछ और ज़्यादा मंथ बीत जाते हैं और किसको, बुलक की यानी कि जो आपका उसका जो बैल था उसकी डेथ के कुछ मंथ बीतने के बाद में अलगू क्या करता है, रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड येट का मतलब होता है अब तक, ठीक है। येट का मतलब क्या होता है, अब तक। तो अब तक के वो जो पैसे उसने दिए नहीं है ना उसकी वो याद दिलाता है साहू, किसको, अलगू को, सॉरी अलगू जो है साहू को याद दिलाता है। साहू गॉट वेरी अनॉयड का मतलब होता है बिल्कुल चिड़चिड़ा जाना, है ना। तो साहू बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है। आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी, ठीक है। रेचेड बीस्ट का मतलब होता है कि अभागा जानवर, है ना, एक ऐसा अनलकी जानवर जो बिकने के बाद मर गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट बीस्ट, है ना, यानी कि अभागा जानवर या जो एक ऐसा जानवर जिसका लक खराब है। तो थोड़े दिन के बाद जब वो अलगू उसको याद दिलाते ना साहू को कि भाई आपको मेरे बैल का जो है पैसा देना है, बड़ा चिढ़ जाता है, कौन, साहू, और क्या बोलता है, देखो मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूँ एक ऐसे अभागे जानवर के लिए जो तुमने मुझे दिया है। पैनी जो है ना वो एक वर्ड है, हम जैसे बोलते हैं ना पैसा, एक पैसा नहीं देने वाला तुमको, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई नॉट पे यू अ पैनी, ठीक है। ही ब्रॉड अस नथिंग बट रूइन, यानी कि वो एक ऐसा भागा जानवर था ना जो हमको कुछ देकर तो नहीं गया, सिर्फ हमारी बर्बादी करके चले गया, है ना। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, गुस्से से क्या बोलता है, देखो भाई मेरे पास एक बैल है
एक काम करो, उसको 1 महीने के लिए यूज़ कर लो और मुझे वापस कर दो। पैसे वैसे तो मैं नहीं देने वाला एक मरे हुए बैल के लिए। गुस्से में वो बोलता है एंग्रीली। ठीक है, एंग्रीली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। या तो वो गुस्से के साथ में, गुस्से से, है ना। गुस्सा तो कर रहा है लेकिन किस तरीके से कर रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है ना। सॉरी, सैड बोल तो रहा है लेकिन किस तरीके से बोल रहा है? गुस्से से बोल रहा है। तो एंग्रीली क्या है? सैड। सैड जो वर्ब है उसका एडवर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू डिसाइड करता है कि अब बस बहुत हो गया भाई, अब मैं पंचायत को ये केस करूंगा। ठीक है। For the second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made. क्या होता है कि दूसरी बार थोड़े ही समय के बाद ही, है ना, कुछ ही समय बीता रहता है और इतने जल्दी एक बार फिर से पंचायत जो है वो बैठती है प्रिपरेशन के साथ में। ठीक है। फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब बोथ द पार्टीज मतलब कि अलगू और जो साहू है ना, उन लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं और मतलब कोशिश करे लोगों को अपनी बात समझाने की, ताकि वो जब वहाँ पर पंचायत बैठे तो वो लोग उनका सपोर्ट कर सकें। अंडरस्टैंड? द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। सीकिंग का मतलब होता है देखना, है ना। सीकिंग देयर सपोर्ट यानी कि उनका सपोर्ट देखना या उसकी अपेक्षा करना। ठीक है। तो पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं अलगू? कि पंच की जो आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई अबाइड बाई हिज डिसीजन। अब क्या हुआ? अलगू क्या बोलता है खड़े होकर कि ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, साहू को ही अपना हेड पंच नॉमिनेट करने दो और वो हेड पंच साहू का चुना हुआ जो भी फैसला सुनाएगा ना वो मैं मानूंगा, मैं उसको करने के लिए बाध्य रहूँगा। बाध्य मतलब कि मुझे वो बात माननी ही पड़ेगी। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, हियर द वर्ड नॉमिनेट मीन्स, देखो नॉमिनेट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है चुनना। ठीक है, किसी को किसी जिम्मेदारी के लिए चुनना, और उसके लिए हमारा जो इंग्लिश वर्ड है वो होता है अपॉइंट। ठीक है। इलेक्ट का मतलब होता है कि वोटिंग दे के चुनना। सेलेक्ट का मतलब होता है कि अपने चॉइस से चुनना। और अपॉइंट का मतलब होता है कि किसी को किसी जिम्मेदारी को देते हुए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको नामित करना। ठीक है। तो अपॉइंट किया गया है उनको। ठीक है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। ठीक है। साहू ने क्या किया? जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया, यानी कि सामने रख दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। हार्ट सिंकिंग का मतलब होता है ना, दिल एकदम बैठा जा रहा है ना डर के मारे। जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप क्या बोल सकते हैं? माई हार्ट इज सिंकिंग, आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल गेट अ रिजल्ट। मुझे थोड़ी ही देर में रिजल्ट मिलने वाला है, मेरा जो दिल है ना बैठा जा रहा है दर्द से या डर से। ठीक है। तो माई अलगू का जो दिल है ना बिल्कुल टूट जाता है, वो बिल्कुल मतलब एकदम निराश हो जाता है, उसका दिल बैठ जाता है और वो पेल हो जाता है, यानी कि ना उसके होश उड़ जाते हैं। अंडरस्टैंड? बट वॉट कुड ही डू? लेकिन अब वो कर ही क्या सकता है? पहले तो बोल दिया उसने कि भाई ठीक है, साहू को चूज करने दो अपना जो पंच है ना। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच he realized his responsibilities as a judge and the dignity of his office. अब क्या हो रहा है कि जो जुम्मन है ना, जैसे ही वो पंच बनता है तुरंत की तुरंत ना उसका जो माइंड है ना वो एकदम चेंज हो जाता है। मैंने बोला ना, देखो अगर आप एक अच्छे इंसान हो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं कहाँ सही कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सेम हैपेंड विथ जुम्मन। जैसे ही कि जुम्मन जो है पंच की जगह पे खड़ा हुआ ना, उसको समझ में आया कि देखो
ये एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बात है कि हमको जज बन के खड़ा होना है। और ये जो जज का जो पोस्ट है ना, उसकी जो डिग्निटी है यानी उसका जो सम्मान है वो मुझे बनाए रखना है। मुझे ऐसा कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है जिसके वजह से पंच का या फिर जो जज है उनकी ऑफिस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उस पर कोई भी दाग धब्बा लगे, या कोई ऐसा बोले कि पंच जो है ना वो भी ऐसे ही हैं, कोई सही जो है फैसला नहीं लेते हैं। ठीक है, उसको पूरी चीज़ें ना समझ में आ गई कि वो एक ऐसी जगह में खड़ा है जहाँ पर उसको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में अपने पर्सनल ग्रजेस को ख़त्म करके और सही तरीके से उसको चीज़ों को सुन के समझ के सही फैसला लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नहीं तो क्या होगा कि पंच की जो पोस्ट की जो डिग्निटी है यानी कि उसका जो सम्मान है ना वो खत्म हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Who is seated in that high place? Have his revenge now? क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या वो उतने हाई प्लेस में बैठकर अपने पर्सनल बदले के बारे में सोच भी सकता था? ही थॉट एंड थॉट, वो यही सोचते ही रह गया कि एक इतने जिम्मेदारी वाले पोस्ट में आकर खड़ा हो गया हूँ कि क्या मैं एक तरफा फैसला कर सकूंगा, है ना? नो, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उसका जो पर्सनल फीलिंग है ना, उसकी जो पर्सनल फीलिंग है और जो उसको सच बोलना है और जो उसको न्याय करना है, वो जो है ना, वो उसकी पर्सनल फीलिंग्स यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस, दोनों ने अपना केस शुरू किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसिडर्ड। अब क्या हुआ, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद उनके केस की सुनवाई होती है। पूरा पंच जो है बैठकर सुनता है उनकी बातों को और समझने की कोशिश करता है कि कहाँ पर कौन सही था और कितना गलत था। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और केस जो है वो पूरा सुन लिया जाता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन उसके बाद खड़े होता है और अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है? इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। जुम्मन क्या बोलता है कि जो साहू है ना, उसको कायदे से अगर देखा जाए तो बैल का जो अमाउंट है, उसका जो पैसा है जो उसने रोक कर रखा हुआ है, वो उसको देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदा था, है ना, जब उसने बैल खरीदा था तब तो वो बड़े अच्छे कंडीशन में था, ना उसको कोई बीमारी थी, ना वो किसी भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था, है ना, कहीं किसी भी प्रकार से अपंग नहीं था, बीमार नहीं था। ठीक है, तो और जो बुलक की डेथ हुई है ना, वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, यानी कि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी और बहुत दुर्भाग्यवश ये ऐसी घटना हो गई जिसमें अलगू जो है ना, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते भाई, वो तो एक हेल्दी बुलक दिया था ना, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके साथ में क्या हुआ, उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई, वो कैसे मर गया, वो तो अलगू के हाथ में नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, यानी कि अलगू जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अलगू तो यही सोच रहा था कि जो जुम्मन है वो क्या करेगा, उससे बदला लेगा और उसके फेवर में फैसला सुनाएगा ही नहीं। बट अलगू ने जब देखा कि जो उसका फ्रेंड है वो अलगू का साथ नहीं दिया है उसने, है ना, जुम्मन ने अलगू का साथ नहीं दिया है, उसने अपने पोस्ट की डिग्निटी को बनाए रखी है ना। उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिस जिम्मेदारी के लिए उसको चुना गया था, उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी। ठीक है, अलगू चौधरी नॉट अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहा था, है ना। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो क्या करता है, खड़े होता है और बिल्कुल एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि एक्चुअली में मेरी जीत नहीं हुई है, ये जो जीत है ना ये किसकी है, पंचायत की जीत है। दिस इज़ जस्टिस, ये जो है ना ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, यानी कि भगवान सच में वास करते हैं पंच की आवाज़ में और वो हमेशा सही फैसला ही सुनाते हैं अपने आपस की बातों को भुलाकर। ठीक है, सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। अब थोड़े देर के बाद, सून आफ्टर यानी कि जैसे ही, है ना,
जैसे ही जुम्मन अलगू के सामने आता है उसको वो गले लगा लेता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या हग करना, है ना। हगिंग को एम्ब्रेस करना भी बोलते हैं। तो सून आफ्टर जैसे ही जुम्मन उसके सामने अपने फ्रेंड के सामने आता है, अलगू के सामने, उसको गले लगा लेता है और उसको बोलता है कि आखिरी पंचायत के बाद से ना मैं तो तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि पंच क्या होता है ना। टुडे आई रियलाइज दैट टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मेंट टू बी पंच, यानी कि पंच कहलाना क्या होता है ना, वो आज मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी जिम्मेदारी वाली बात है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, पंच जो है वो क्या जानता है, सीधा साफ सुथरा न्याय करना जानता है। जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। तो क्या बोल रहा है, लेट यानी कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम किसी को भी डेविएट होने ना दे। डेविएट का मतलब पलटने ना दे अपने थॉट्स में, है ना। किसी भी इंसान को फ्रेंडशिप और एनिमिटी यानी कि दोस्ती और दुश्मनी के जो कहना चाहिए उसका जो दायरा है उससे आगे बढ़कर हमको चीज़ों को सोचना है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, है ना, अपने दोस्त को गले लगाता है और अपने आंसू को पोंछता है। वेप्ट का मतलब होता है पूछा। क्या पूछेगा भाई, अपने आंसू पूछेगा, है ना। His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू क्या करता है, अपने दोस्त को गले लगाता है और उसके जो टीयर्स होते हैं ना वो पूरे धो देते हैं। किस चीज़ को धो देते हैं, उनके आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, जो गलत फहमी हो गई थी, उसको उन लोग बिल्कुल मिटा देते हैं गले मिलकर, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दिस वाज द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय अ वेरी ग्रेट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड व्हाट टू से, नॉवेल लिखते थे, बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते थे और ये उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं। बर्थ हुआ था उनका 1880s में 31 जुलाई को और वो उनकी डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1939 में। गॉट इट। फेमस इंडियन राइटर है, ठीक है। और उनकी जो कुछ फेमस जो राइटिंग वर्क है ना वो क्या है, हिंदू उर्दू लिटरेचर, हिंदू उर्दू मिक्स करके वो लिखते थे अपने साहित्य में, लिटरेचर में, ठीक है। नॉवेलिस्ट थे यानी कि नॉवेल लिखते थे, राइटर थे, स्टोरी राइटर यानी कि कहानी लिखने वाले, और एक ड्रामेटिस्ट भी थे। ड्रामेटिस्ट यानी कि ड्रामा भी लिखते थे, ठीक है। ड्रामा मतलब कि कैसा, एक ऐसा राइटिंग जहाँ पर उनकी स्टोरी को पढ़कर लोग एक्ट कर सकते हैं ना, एक्टिंग या स्टोरी के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। He has been referred as to the उपन्यास सम्राट, उनको क्या बोला जाता था, उपन्यास। उपन्यास का मतलब होता है नॉवेल। नॉवेल क्या होती है भाई, नॉवेल एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक स्टोरी को पूरा बिल्कुल एकदम डिटेल में बहुत सारे पेजेस में मोटी बुक के तौर पे, या मोटी पतली जो भी, लेकिन एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉवेल। तो उनको उपन्यास का सम्राट बोला जाता था बाई वेरियस हिंदी राइटर्स। जो बहुत सारे अलग अलग हिंदी के राइटर्स थे ना उनको उपन्यास सम्राट बोलते थे, यानी कि उपन्यास लिखने वाला एक ऐसा इंसान जो उपन्यास लिखने का राजा है। His works include more than a dozen novels and around 250 short stories. क्या क्या किया उन्होंने, डजन यानी कि 12 से भी ज़्यादा उन्होंने नॉवेल लिखी यानी कि उपन्यास लिखे, और कम से कम 250 250 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है। इस फेमस वर्क आर गोदान, कर्मभूमि एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये जो तीन जो उनका लिटरेरी वर्क है ना, यानी कि वो साहित्य में उन्होंने जो लिखा है वो ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस है। वो क्या है, गोदान, कर्मभूमि एंड शतरंज के खिलाड़ी। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। और यहाँ से हमको ये चीज़ सीखने मिलती है कि ना सिर्फ पंच में बल्कि ऐसे नॉर्मली भी हमको एक ऐसा इंसान रहना है जहाँ पर हम सही से खुलकर गलत में गलत बोल सकें और सही में सही भी बोल सके। अंडरस्टैंड।
That's it. That's all about the chapter. Thank you so much. Bye bye. God bless you.